Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and welcome you all on today's class. And today we will understand how to draw a line segment using the scale, okay, and the given length. Okay, so here the 5 centimeter length is given and we have to understand how to draw a line segment of 5 centimeter, 5.7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और वॉट एवर. ठीक है, तो हम लोगों को आज समझना है कि हम लोग कैसे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू परचेज अ न्यू स्केल. आपको एक नई स्केल खरीदनी है. ठीक है, बिकॉज द ओल्डर स्केल मे बी डैमेज्ड. हो सकता है आपके वहाँ जो एजेस है वो डैमेज्ड हो. सो व्हेन यू विल ड्रॉ अ लाइन इट विल नॉट स्ट्रेट. अगर आप पुरानी स्केल अगर आपका डैमेज हो चुका है तो वो लाइन सीधी नहीं बनेगी. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. सो येस्टरडे आई टोल्ड यू दैट यू 1 minute, okay, that the scale, okay, this is then a scale, and as you can see here, this is a 0 centimeter, this is a 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter and 4 centimeters. So as you can see the 1 centimeter, the whole 1 centimeter is divided. यहाँ पे कुछ लाइन्स ज़्यादा है, ओके, बट नॉर्मल स्केल में हमेशा 1 सेंटीमीटर में करीब 10 लाइन्स होती है. ठीक है, 1 centimeter, that is 3 centimeter, that is 4 centimeter. So as you can see the distance between 3 and 4 is a 1 centimeters. Okay, so this 1 centimeter is divided into 10 equal parts. ठीक है, और whatever the part, जितना भी पार्ट आने वाला है फ्रैक्शनल पार्ट, वी विल राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. ओके, हम लोग पॉइंट के बाद लिखेंगे. ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड it is 3 centimeter. The line in between the 3 and 4 is 3.5 centimeter. ठीक है, then एक मिनट. Okay, this is 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and that is the 4 centimeter. It is a 4 centimeter. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. This is a 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 and it is a 5 centimeter. ठीक है, so that means what, a 1 centimeter is divided into 10 equal parts. ठीक है, समझ में आ गया. and each part is called as 1 millimeter. ठीक है, हर एक पार्ट जो है वो 1 millimeter है. तो जितना भी मिलीमीटर आएगा we will write after the point. हम लोग उसको पॉइंट के बाद लिखेंगे. ठीक है, okay, so let's draw a line segment of 5 centimeter, my dear students. So what we have to do, we have to start from 0 and we will go up to the 5 centimeter. हम लोग 5 centimeter तक draw करेंगे. So you have to, first of all, what you have to do, first of all you have to place a scale properly and press it gently. ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करके रखना ताकि वो हिलना नहीं चाहिए. ठीक है, now take a sharp pencil. Dear students, you have to take a sharp pencil. Don't take a unsharp pencil. अगर आपका पॉइंट बहुत शार्प होना चाहिए. ठीक है, so now we have to place the point. We have to place a point at 0. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 0 पर उसे रखेंगे straight and you have to draw a line up to till 5 centimeter. When you will reach a 5 centimeter, you have to stop. ठीक है, from the camera you have seen that आपको ऐसा लग रहा होगा कि 5.1 हो गया है, but it is not 5.1. ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है प्रॉपरली. द स्केल जो पेंसिल है वो थोड़ी सी लंबी है और कैमरा बीच में आ रहा है. ठीक है, so that's why I am using a slant, but you have to use a straight pencil. ठीक है, so this is a 5 centimeter line and we have to draw a end point. अब हमको end point बनाना है. So you have to just place the pencil and just rotate. Okay, done. Okay, that is the 5 centimeter line, dear students. That is the 5 centimeter line. Okay, देखो ये जो डॉट्स है एकदम पिन पॉइंट के जैसा बना है. You don't have to draw like this. उस पर ऐसे बार बार ओवर राइट नहीं करना है. ठीक है, so that is the 5 centimeter line. We will write a name, A point, that is the point B, and the distance is 5 centimeter. Okay, so that is the line segment AB is equal to 5 centimeters. We can denote the line segment using the A is the point and B is another point, and we will draw a small line segment over this name, and that is a AB is equal to 5 centimeter, and this small line segment is denoted
it is representing that the AB is a line segment. ठीक है. So now we will draw a line segment of 4.3 centimeters. Listen dear student, 4.3 बाद में करते हैं. Let's solve 4.5. Okay. So now the second question is draw a line segment. Okay. Give me 1 minute. Okay. Draw a line segment of 4.5 सेंटीमीटर. ओके, अब हमको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है. एंड गिव द नेम CD. ओके, उसको नाम देना है हम लोगों को CD. दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ 2 पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट C एंड पॉइंट D, and we have to draw a line segment between these 2 points, and the distance between the point C and point D, it must be equal to the 4.5 centimeter. So dear student, this 4 is a 4 centimeter and this is a millimeter. That means 4 centimeter 5 millimeters. So we can write it as a 4.5 centimeters. जैसे हम लोग मनी में लिखते हैं ना, 5 रुपीज़ 50 पैसे, 5 रुपीज़ 75 पैसा. सो जो पैसा होता है वो हम लोग पॉइंट के बाद लिखते हैं, and the rupees, which is the whole part, we will write towards the left hand side of the decimal point. Okay, so now what we have to do, we have to take a scale. हमें स्केल लेना है. अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, you have to purchase a new scale. Don't use the older scale because the edges of the scale may be damaged. हो सकता है आपकी पुरानी स्केल का जो एज है, जो किनारा है, वो डैमेज हो गया हो तो लाइन सीधी नहीं बनेगी. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू टेक अ स्केल एंड जस्ट जेंटली प्रेस करके रखना ताकि वो स्केल अपने जगह से हिलना नहीं चाहिए. यू हैव टू प्रेस लाइक दैट it does not move. Okay, so now what we have to do, take a sharp pencil and you have to place a pencil at 0. Okay, we have to place at 0. अब मैंने इसको 0 पे रख दिया है. Now you have to go up to the 4.5 centimeter. That means 4 centimeter and 5 millimeter. ठीक है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा. Okay, so as you can see, I'm going up to the, हो गया 4 centimeter. नहीं, the लिसन डियर स्टूडेंट्स, मेरी पेंसिल स्लैंट है. ठीक है, थोड़ी सी तिरछी है. अभी तक ये 3.9 तक ही पहुंची है, बट आपको कैमरे में 4 सेंटीमीटर दिख रहा है. ठीक है, सो नाउ इट इज़ ओके. नाउ इट इज़ अ 4 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट्स. अब ये 4 सेंटीमीटर पे आ गई. नाउ वी हैव टू मूव अप टू द 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर. यस, तो मैं यहाँ तक के लेकर आऊँगा. ओके, सो दैट इज़ अ 4.5 centimeter dear students. This is a line which is a 4.5 and I reach up to the 4.5. Okay, 4.5. Okay, so that is a 4.5 centimeter. And dear student, listen carefully, one more thing, you don't have to overwrite. आपको एक बार में ही पेंसिल से उसे ड्रॉ करना है, बार बार ओवरराइट नहीं करना है. ठीक है, इफ यू विल ओवरराइट तो सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ पॉइंट लाइक दिस. ओके, सो दैट इज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, देखो यहाँ से मैंने ओवरराइट, शायद स्केल जो है थोड़ी सी अपनी जगह से हिल गई थी और ये लाइन प्रॉपरली नहीं बनी है. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट अगेन. और अब मैं जहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ की थी मैं वहाँ ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करूँगा या फिर साइड में. ठीक है, सो 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट. ओके, सो नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. सो दैट इज़ अ 4.5, that is the line of 4.5. Okay, so that is a line segment of 4.5 centimeter. Dear students, okay, so that is a line segment of 4.5 centimeter. That is a point C. This is a point D, and the distance between the point C and point D is 4.5 centimeter. So we will write a line segment CD, okay, is equal to 4.5 centimeter. I hope you understand how to draw a line segment. Now we will draw a line segment of 7.3 सेंटीमीटर. अब हम लोग 7.3 का बनाएंगे. ठीक है,
So now we have to draw a line segment of 7.3 centimeter and we have to give the name ZA is equal to 7.3 centimeter. Now we have to draw a line segment of 7.3 centimeter, my dear students. अब हम लोग 7.3 का कैसे बनाएंगे? So it is very simple. Again we have to take a 2 points, point Z and point A, and the distance between this point is equal to the 7.3 centimeters. That means it is a 7 centimeters and 3 millimeters. ठीक है, 3 millimeters हमको extra लेना है. And again I am requesting to all of you, please sharp your pencil before drawing a line, because अगर वो sharp नहीं रही तो अच्छे से नहीं बनेगा वो. ठीक है, okay. So now let's move towards the question, and that is the 7.3 centimeters. So dear students, listen carefully. That is the 7 centimeter, and after the 7 centimeter we have to take a 3 lines. Okay, 3 ही line लेना है because we want only 3 millimeters. Okay, so okay, so now dear students, because of this wire, मैं पेंसिल तिरछी के कर रहा हूँ, आपको शायद अच्छे से दिख रहा है कि मुझे नहीं पता. ठीक है, so please listen carefully. You have to place a point, okay, properly at the end point, and you have to hold the pencil like this, straight पकड़ना है. ठीक है, तो give me 1 minute, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ. okay. Okay, so now we have to draw a line segment of 7.3 centimeters. So what we have to do, we will take a pencil and we will place at a 0, okay, 0 पे रखना है और उसको 7.3 तक लेकर जाना है. You have to draw a line segment of 7.3. Dear students, I reach up to the 7 centimeter. Now I will move further up to the 3 centimeters. लेकिन ऐसा रुकना नहीं है, डायरेक्टली जाना है, तो फिर ओवर राइट होता है वो. 1, 2 and 3. ओके, सो दैट इज 7.3 centimeter. And okay, so dear students, this is a line segment of 7.3 centimeter. That is the point Z, that is the point A, and the distance is 7.3 centimeter. And we will write a line segment. Okay, D नहीं करना है, Z करना है भाई. Okay, so we have to write ZA bar is equal to the 7.3 centimeters. Okay dear students, I hope how to draw a line segment you understand how to draw a line segment. अब हम लोग आते हैं बुक की तरफ. That means your page number 117 dear students. So on the page number 117 there is a six questions. So you can draw a line segment AB is equal to the 7 centimeter. Okay, is equal to the 7 centimeter. Then line segment CD is equal to the 6 centimeter. Then BC line segment, which is a BC, and it is a 5.5 centimeters. So you have to draw a line of 5 centimeter, and then you have to draw a 5 millimeter extra. तो जब आप एक बात और मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ. व्हेन यू विल ड्रॉ अ लाइन, जब आप लाइन ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है, तो आपको बीच में कहीं रुकना नहीं है. जैसे अभी मैं रुका था, ऐसे आपको रुकना नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड अप टू टिल विच पॉइंट यू हैव टू मूव द पेंसिल को कहाँ तक मूव करना है आपको पहले से पता होना चाहिए. दैट इज सपोज दैट इफ यू आर, अगर आप 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लेस अ पॉइंट ऑफ पेंसिल ऑन 0, और आपको एक ही बार में इन वन सिंगल शॉट, एक ही सिंगल शॉट में आपको 5.5 तक पहुंचना है. मतलब आप ऐसे रुक कर नहीं करेंगे. मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट डू लाइक दिस, ऐसे फिर ऐसे नहीं करना है. यू हैव टू प्लेस एट 0 एंड जस्ट ड्रॉ अ वन सिंगल. ओके, सिर्फ एक ही बार में आपकी लाइन ड्रॉ हो जाना चाहिए. ठीक है, एंड डोंट ओवर राइट माई डियर स्टूडेंट्स. इट विल लुक लाइक द लाइन विल बी ब्रॉड. ठीक है, थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखेगी. सो यू हैव टू understand about it. Okay, and now the question arises that how can we draw a DE is equal to 6.5 centimeters. This half is indicating that 0.5. Okay,
हाफ का मतलब 0.5 ही होता है, बिकॉज द हाफ सेंटीमीटर मीन्स 5 मिलीमीटर्स. यस, इसका हाफ कितना है? वन मिनट. हाँ, द लाइन which is at the center of 6 and 7 is half. Okay, so that is a 6.5 centimeter. तो आपको यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करना है 6.5 तक. Okay, here you have to draw a 4.5 centimeter. That means it is nothing but 4.5 centimeter, and that is the 3 centimeters. And if you want to draw a 5.7 centimeters, so you have to draw a line segment of 5 centimeter, then extra 7 millimeters. Extra 7 तक जाना है और आपको एक ही बार में पूरी लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, आपको समझ में आ गया मुझे ऐसा लगता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेंटल मैथ्स एंड एज यू okay, so now we have to understand about the mental maths. So as you can see here, we have to find the length of the crayons. So length of the crayons is about 2 centimeter. Look at this, 2 centimeter is coming, so we will write here 2 centimeters. The length of this is 4 centimeter. Okay, the paintbrush is 4 centimeter, and the length of this comb is about 6 centimeters. Okay, so 2, 4 and 6 is the answer. Now we have to move towards the next page. And dear student, listen carefully. Listen dear students, you have to write. Again I am showing you, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है. Okay, I want to show us something, that is you have to open the page number 108. Dear students, I request to all of you, please open the page number 108, and you have to write dear students from this heading simple closed figure से आपको लिखना है. You have to write up to the exercise 7.2 के ऊपर में जो भी है, you have to write these all things in your notebook. मैं फिर से बोल रहा हूँ, you have to draw these all things in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में इसको लिखना है. ठीक है, so now okay, भाई तू you have to draw. Okay, you have to write this all things from simple close figure से आपको स्टार्ट करना है और आपको यहाँ तक पूरा लिखना है. ठीक है, so as it is लिखना है, but now we have to understand about these things. अब ये है क्या चीज़, हमको इसको समझना है. It is very very easy my dear students, it is very very easy. ठीक है, so first of all I want to tell you about the figures. So what is written here? Simple close figures, or you have to write a okay, don't give the heading simple close figure, write down heading only figures. Okay, सिर्फ आपको figures ही लिखना है. And now we will understand about the figures, some basic figures. ठीक है, बहुत easy है, सबसे ज़्यादा easy part है ये. So now I want to tell you one thing. The first type of figure is open figure. बहुत easy है, open figure. Now we have to understand what is meant by open figure. ये open figure होता क्या है? It is very simple. Let us suppose that there is a 2 point, that is the first point and that is the second point. Okay, if there is any figure, ऐसा कोई भी curve या whatever, if it is started from first point, अब वो first point से start हुआ है और second point पे जाके end हो गया. That means if that is a 1, okay, the figure is started from first point. आपका जो figure है ये first point से start हुआ और जाके second point पे खत्म हो गया. So that is a open figure. What is the definition of open figure? If the figure is started from first point and it is end on the another point, then it is called as the open figure. ठीक है, so as you can see here, this is a open figure, a shape or a figure that begins. The meaning of begins is started. Okay, and end at a 2 different point is called as the open shape. It is not necessary you have to learn this definition, you can make your own definition. Okay, बस simple है, एक point से start होना चाहिए, second point पे जाके खत्म हो जाना चाहिए, then it is called as open figure. Or you can write the figure which is started and end, start हुआ और end हुआ at 2 different point, अलग अलग point पे जाके एक point से start हुआ दूसरे point पे खत्म हो गया, that is called as open figure. Understood? I hope you understand. Now let's move towards the closed figure. अब ये closed figure क्या होता है? Now we will understand about the closed figure. ठीक है,
Now what is meant by closed figure? It is very simple. Let us suppose that there is a one point and the figure started from this point. Figure यहीं से start हुआ और यहीं पे जाकर खत्म हो गया. As you can see here, it is a closed figure. This figure is started from this point and end at the same point. If there is a point and this is also closed figure. कुछ भी हो, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसी पॉइंट पे जाके खत्म हो गया. That means this is started and end at the same point. Or you can write, if the figure begins and end at the same point, then it is called as the closed figure. ये आपका closed figure है, ठीक है. And these are the examples of closed figure. This is the first point. From this point the figure is started and end at the same point. यहाँ पर भी क्या हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वहीं पे जाकर खत्म हो गया. सिंपल ट्राइंगल, दिस इज अ क्लोज फिगर. यस डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो अ क्लोज फिगर. इफ यू विल ड्रॉ लाइक दिस, अरे it is looking like this, ठीक है. this is a closed figure. This is a circle. This is also a closed figure, ठीक है. So the shape or a figure that begins and end at the same point is called as a closed figure. Same point पे जाके खत्म हो जाना चाहिए जहाँ से start हुआ वहीं से. So that is called as closed figure. Understood? What is open figure? The open figure begins and end, यानी कि it is started from first point and end at the second point or another point, then it is called as open figure. Closed figure वो है if the figure started from one point and end at the same point, then it is a closed figure. अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्लोज फिगर. डियर स्टूडेंट, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल क्लोज फिगर एंड क्लोज फिगर, ठीक है. क्लोज फिगर में और सिंपल क्लोज फिगर में डिफरेंस है, ठीक है. क्लोज्ड फिगर एंड सिंपल क्लोज फिगर. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल क्लोज फिगर एंड क्लोज्ड फिगर, ठीक है. क्लोज्ड फिगर वो है जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वहीं पे जाके खत्म हो गया, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, सिंपल, ऑल द सिंपल क्लोज फिगर इज क्लोज फिगर बिकॉज इट इज रिटन हियर क्लोज्ड. क्लोज तो है लेकिन सिंपल है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल? इट इज, इसका मतलब यह है इट इज नेवर क्रॉस इटसेल्फ. सिंपल है अ फिगर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड एंड एट द सेम पॉइंट बट इट इज नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ. जैसे कि ये क्या हुआ, अपने आप को ही क्रॉस करके चला गया. यहां से क्या हुआ, एक दो कट के चला गया. सो दैट इज अ क्लोज फिगर बट इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज फिगर. हाँ, ये है सिंपल क्लोज फिगर. सिंपल क्लोज फिगर इज क्लोज फिगर. ये तो क्लोज है ही लेकिन सिंपल क्लोज भी है, ठीक है. यू आर गेटिंग? मैं फिर से बताता हूं. दिस टू फिगर्स आर क्लोज फिगर. क्लोज फिगर का डेफिनेशन ये है, इफ द फिगर स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, इफ द फिगर स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट and end at the same point. एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे जाके फिनिश हो गया, तो ये क्लोज फिगर है. चाहे फिर वो कैसा भी हो, इट इज क्रॉसिंग इटसेल्फ, इट इज नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ, व्हाटएवर, इट इज क्लोज्ड फिगर. बट सिंपल क्लोज फिगर है इफ द फिगर स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड एट द सेम पॉइंट, देन इट इज क्लोज्ड. बट व्हाट, आपका फिगर एक दूसरे, मतलब एक अपने आप को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए. देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल क्लोज फिगर. दिस इज अ सिंपल क्लोज फिगर. दिस इज ऑल्सो सिंपल क्लोज फिगर बिकॉज इन दिस केस क्या हुआ है, पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे जाके खत्म हो गया, बट इट इज नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ. अपने खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है. लाइक दिस, इफ यू आर सेइंग दैट लाइक दिस, हियर इट इज क्रॉसिंग इटसेल्फ, ठीक है. ये सिंपल क्लोज नहीं है, क्लोज है बट ये सिंपल क्लोज है. सो लेट्स सी द सम एग्जांपल ऑफ सिंपल क्लोज फिगर. These are the simple close figure, okay. These figure are started from the one point and end at the same point, but it is not crossing itself. It is not crossing itself, ठीक है. A shape, a closed shape or a figure, closed shape होना चाहिए, ठीक है, और a figure that does not cross itself is called as the simple closed figure, ठीक है. ओके, तो सिंपल है. अगर कोई क्लोज फिगर अपने आप को क्रॉस नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल क्लोज फिगर. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दी. ओके,
Now we will understand what we will understand. Today we will understand about the polygons. Now the question arises that what is meant by polygons? Polygons क्या होते हैं? ठीक है, सिंपल है. A polygon is named according to the number of side and a simple closed figure made up of only line segment. Dear student, listen carefully. ऐसे सिंपल क्लोज फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स है वो, ठीक है. क्या है वो? पॉलीगॉन्स है. पॉलीगॉन किसको बोला जाता है? ऐसे सिंपल क्लोज फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं, उसमें कोई भी कर्व नहीं आता है. एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, 1, 2 and 3. okay, 3 line segments हैं. then you can see this is a quadrilateral. okay, so now you will ask that sir, क्या स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है क्या वो क्वाड्रिलेटरल्स है? yes dear students, रेक्टेंगल और स्क्वायर स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है. स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है. ओके, क्वाड्रिलेटरल किसको बोला जाता है? अ पॉलीगॉन और अ क्लोज फिगर, a simple closed figure, not closed figure, simple closed figure which is made up of only 4 line segments. कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 4 line segments है, that is called as a quadrilateral. इसके बाद मैं आपको कुछ examples बताने वाला हूँ इसी वीडियो में. वीडियो बहुत लंबा होने वाला मुझे पता है, but it is very very interesting my dear students. I have a kit of polygons and I will show you. okay, so now as you can see it is a quadrilateral. देखो सिंपल है. इफ द फिगर इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, दैट इज अ ट्रायंगल. इफ द फिगर इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, देन इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बहुत बड़ी फैमिली है. ठीक है, इफ यू विल सर्च ऑन यूट्यूब और गूगल, फोटोग्राफ आ जाएगा, अ फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, द रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, these all are quadrilaterals. पर इनमें फ़र्क है, बस थोड़े थोड़े से स्पेशल टाइप के हैं. हियर इट इज़ मेड अप ऑफ अ 4 लाइन सेगमेंट विच इज़ ऑल द लाइन सेगमेंट इज सेम. रेक्टेंगल में अपोजिट साइन सेम होती है. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, इट इज़ द पैरेललोग्राम और मे बी वॉट एवर. ठीक है, इनके डिफरेंट लाइन सेगमेंट के लेंथ के हिसाब से उनके अलग अलग नाम हैं. बट आपको सिर्फ इतना ही समझना है अभी फ़िलहाल, दैट इफ़ द figure is made up of 4 line segment, then it is a quadrilateral. ठीक है, okay. then if the figure is made up of 5 line segments है, then it is called as a pentagon. ठीक है, you can say that it is a pentagon or pentagon. and if there is a figure which is made up of 6 line segments. okay dear students, which is made up of a 6 line segment, then it is called as the hexagon. उसको क्या बोला जाएगा? हेक्सागन बोला जाएगा. ठीक है, ओके, खुद ही that is called as hexagon. okay, so I have a kit and I'm showing you a different figures. so please be stay online. बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आ रहा हूँ. ठीक है, ओके, so 1 minute, I'm coming. okay, okay, so I have a kit and dear students, I'm showing you everything. ठीक है, ध्यान से देखो. give me a 1 minute. बंद हो जा भाई. okay, so now we will understand about the polygons. so I have a kit and with the help of this kit we will understand everything. so dear students, as you can see here, okay, so dear student, this is a polygons. ठीक है, ये सारे के सारे polygons है. as you can see here, this is a triangle. what is this? This is a triangle which is made up of 3 line segments, 1, 2 and 3. ये आपका triangle है. ठीक है, that is a triangle. now as you can see here, this is a quadrilateral. okay, this is a quadrilateral because it is made up of 4 line segments, 1, 2, 3
and 4, ठीक है। स्पेशल नेम गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल दैट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है और इसका नाम पैरेललोग्राम है। बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल इसलिए है बिकॉज इट हैव अ 4 लाइन सेगमेंट्स, इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ओके, दिस इज द पैरेललोग्राम और अ क्वाड्र। इसका ध्यान से समझो। As you can see here, this is also this is made up of 4 line segments. I'm showing you different things. Okay. So listen dear student, these all are made up of 4 line segments. ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। This is a square. This is also made up of 4 line segments. This is a rectangle and this is also made up of 4 line segments. This is a concave polygon. ये concave quadrilateral है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग बाद में पढ़ेंगे, बट इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। दिख नहीं रहा है क्या? 1 2 3 4, ठीक है। ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट डियर स्टूडेंट्स। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब 4 लाइन सेगमेंट से बने हैं। 4 लाइन सेगमेंट से बने हैं ना ये सब के सब, है ना। लेकिन इनके स्पेशल नाम है। दिस ऑल आर क्वाड्रिलेटरल, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल ही है, बट दिस द स्पेशल नेम इज गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इट इज अ रेक्टेंगल, ये जो है रेक्टेंगल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो, ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली है। ये सब के सब 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं और इनकी फैमिली में अलग अलग मेंबर्स हैं, ठीक है। सो दैट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, बट इट इज लुकिंग डिफरेंटली, सभी से अलग दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज अ रेक्टेंगल, बट इट इज द क्वाड्रिलेटरल बिकॉज क्वाड्रिलेटरल वो है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स है और ये 4 लाइन सेगमेंट्स, ये क्वाड्रिलेटरल है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड द नेम इज गिवन टू दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड द नेम इज गिवन दैट इज अ ट्रेपेजियम। क्या है इसका नाम? ट्रेपेजियम, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। This is also a quadrilateral which is made up of 4 line segment, but it is a special type of quadrilateral and the name is given that is a square. ये square है, ठीक है। This is also a quadrilateral because it is also made up of 4 line segment, but it is the name is given, इसका जो नाम है that is a concave quadrilateral। कॉनकेव है। इसमें सिर्फ एक स्पेशल टाइप की ये है कि ये जो पॉइंट है इसका एक एंड पॉइंट इसके बॉडी मतलब जो अगर ये ऐसा सीधा होता तो इट इज़ ट्राइंगल, है ना। या फिर अगर मैं इस पॉइंट को खींच के ऐसा करूँ तो इट विल लुक लाइक अ पैरेललोग्राम। बट क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ये इसकी बॉडी के अंदर साइड जा रहा है, ठीक है, अंदर ही धस रहा है, तो सिंपल इट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। बट दिस पॉइंट ये क्या है? इट इज़ अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि इसके एंड पॉइंट को बाहर, इसके बॉडी के बाहर जाता है। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इन स्टैंडर्ड 8th। ये स्टैंडर्ड 8th में है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो नेट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ quadrilateral which is also made up of 4 line segment and the name is given to this type of quadrilateral is, और इसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल द क्वाड्रिलेटरल एंड यू हैव टू सर्च अ क्वाड्रिलेटरल फैमिली ऑन द गूगल। यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आपको पढ़ना है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वाड्रिलेटरल डियर स्टूडेंट्स। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल तो सारे हो गए। दिस इज अ पेंटागन, इट इज मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट डियर स्टूडेंट। दिस इज मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट्स और ये जो है ये पेंटागन है, ठीक है। इट इज अ पेंटागन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट पॉलीगन एंड दैट इज अ हेक्सागन। दिस इज मेड अप ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स एज यू कैन सी हियर, दिख रहा होगा तो दिस हियर इज रिटन, ओके, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है where it is 1 2 3 4 5 and as you can see here, 1 minute, this is written here 6 and this 6 is saying that it is a 6.6 vertices are there and the line segment is 6 line segment, so that is a hexagon, ठीक है। ये क्या है? हेक्सागन है या फिर हेक्सागन बोला जाता है। now we will move towards the 7 side and 7 side वाला भी है मेरे पास, give me a 1 minute, okay, that is a 7 sided।
This is a seven sided polygon. 7 vertices are there. 1, मैं यहाँ से गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7. सॉरी, इट इज ऑक्टागॉन. ये तो ऑक्टागॉन है. 8 साइड है इसमें. दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल डियर स्टूडेंट. दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रोम्बस. ये अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, हाँ, ओके. आई गॉट दी 7 साइडेड पेन. 7 साइडेड. एज यू कैन सी दैट दिस इज अ 7. 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज अ सेप्टागन. ये क्या है? सेप्टागॉन है. ठीक है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. इट इज अ polygon which is made up of 7 line segments. That means 7 vertices are there. ठीक है, ये क्या है? सेप्टागॉन है. ठीक है, then it is a octagon because it is made up of 8 line segments. ठीक है, as you can see here is written 8 points है इसमें, और ये octagon है. क्या है? octagon. What is this? This is octagon. ठीक है, then there is a nonagon I have. That is a nonagon. It is, ठीक है, 9 sides are there. This is a simple closed figure which is made up of 7 line segments, and that is 9 line segments, 9. ठीक है, and it is a nonagon, and it is made up of 10 line segments, and it is a decagon. ठीक है, ये decagon है. and ये हमारा सबसे प्यारा, that is a circle. And dear student, that is also a quadrilateral because it is made up of 4 line segments, but इसको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है. इट इज़ सिंपल क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल एंड द नेम, एक इसमें से डायमंड है और एक इसमें से रोम्बस है. ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ अ डायमंड एंड दैट इज़ अ रोम्बस. मे बी मुझे चेक करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ लुकिंग लाइक सिमिलर थिंग. ठीक है, कुछ छोटे से ही डिफरेंसेस है. सो दैट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. सो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ द काइट एंड इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, दैट इज़ द ओवल शेप है. दैट इज़ द रेक्टेंगल एंड दैट इज़ द स्क्वायर. ये शायद दूसरे किट में से मेरे किट में आ गया है. ठीक है, सो दैट इज़ द ओवल. अब आपको क्वाड्रिलेटरल्स दिखाता हूँ मैं. सभी में 4 लाइन सेगमेंट है. ठीक है, सो these all are dear students, wait a minute बेटा, 1 मिनट. ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, अरे बाप रे, बहुत है ये तो. ओके, दैट इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल. दिस ऑल आर क्वाड्रिलेटरल बिकॉज दे ऑल आर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये सब के सब 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने हुए हैं, और ये रेक्टेंगल है. ठीक है, कहाँ रखो इसको. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज अ फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये पूरी की पूरी फैमिली है, और हर अलग अलग क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग नाम दिया गया है. ठीक है, दैट इज स्क्वायर, इससे आप फैमिलियर हो. दैट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. नेम इज पैरेललोग्राम, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. इट इज अ काइट, ट्रपेजियम, सिंपल क्वाड्रिलेटरल. इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे. 1 इज़ डायमंड एंड द सेकेंड इज़ रोम्बस. ये तो मुझे पक्का पता है, बट एक बार देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या क्या है. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. इट इज़ रिटन ऑन द बॉक्स. ओके, बॉक्स मिल गया. एंड इट इज़ GS4 वाला क्या है? लेट्स सी GS4. ओके, इट इज़ डायमंड डियर स्टूडेंट्स. ये वाला जो है ये डायमंड है, एंड दैट इज़ योर रोम्बस. ठीक है, ये आपका रोम्बस है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग डियर स्टूडेंट्स. आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप यू एंजॉयड एंड हैव अ गुड डे एंड बाय बाय. टेक केयर. बाय एवरीवन. एंड डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 है, वो आपको कंप्लीट करना. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. ओके, चलिए बाय, टेक केयर.